आसनसोल उत्तर थाना इलाके में डिपो पाड़ा में स्थित नीलंजना लेडीज कॉर्नर दुकान में सोमवार सुबह आग लग गई। इस भयावह आग में दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि आग में लाखों रुपए के सामान जल गए। सूचना पाकर लोग मौके पर पहुंचे तथा दमकल को खबर दी गई। दमकल विभाग के कर्मियों ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। दुकान की मालकिन गोपाल नगर इलाके में रहती है। जैसे ही उनको उनकी दुकान में आग लगने की खबर मिली, वह आनन फानन में दुकान पहुंची तो देखा उनकी दुकान धू धू कर जल रही थी। दमकल की एक इंजन ने मौके पर आकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के मालकिन ने कहा कि आग किस कारण से लगी है ये तो अब तक पता नहीं चला है, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ है। दुकान की मालकिन ने यह भी कहा कि इस अग्निकांड में उनकी दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। আমি আর আমার দাদা দৌড়ে এসেছি, এসে দেখি সব চারটা হয়ে গেছে। কি করে আগুনটা লেগেছে? ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট থেকে মনে হয় হয়েছে। কত টাকার জিনিস বেরিয়ে? প্রায় 10 লাখ টাকার উপরে জিনিস ছিল, তারও বেশি ছিল। সমস্তই একটা দোকানে তো 10 লাখ টাকা জিনিস থাকে, তার বেশি থাকে। পার্লার রয়েছে, তারপরে কসমেটিক্স সব কাপড় ছিল, আইসক্রিম, তারপরে আইসক্রিম, কাপড়ের দোকান ছিল, মানে একটা লেডিস দোকান। মানে 10 লাখ টাকা কি 20 লাখ টাকার জিনিসই নষ্ট হয়েছে। এটা যদি মানে এখন সম্ভব হয় মানে ওকে সাহায্য করার, সেটাই আমরা চেষ্টা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি শূন্যতে দাঁড়িয়ে গেলাম। মেয়েটা আবার সেই শূন্যতে এখন দাঁড়িয়েছে, সেটা আমরা চাইছি। চেষ্টা করে দেখবো দাদা আসুক, অমরদাও আসুক, যে আমরা সবাই মিলে ওকে যদি ভালো সাহায্য করতে পারি। दामोदर नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर सेतु बंधन कमेटी द्वारा सोमवार को बांस के अस्थायी पुल पर धरना प्रदर्शन किया गया। आसनसोल के बर्नपुर और बांकुड़ा जिले के बीच इस पुल की मांग दशकों से चली आ रही है। इस्पात मंत्रालय द्वारा तो पुल का शिलान्यास भी कर दिया गया था, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी पुल नहीं बना। वहीं इसे लेकर अब राजनीतिक खींचातानी भी हो रही है। पुल न होने से लोगों को होने वाले परेशानियों को देखते हुए अब स्थानीय लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा भी लगातार यहां पुल बनाने की मांग की जा रही है। दामोदर नदी पर पुल बनाने से आसनसोल यानी कि पश्चिम बर्धमान जिले से बांकुड़ा और पुरुलिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां से बिहारीनाथ मंदिर जाने की दूरी भी कम हो जाएगी। लोगों को पुरुलिया एवं बांकुड़ा जाने में काफी समय की बचत होगी। इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर बढ़ेंगे। इन 3 जिलों के लिए ये पुल एक नया आयाम स्थापित कर सकती है। আমাদের দাবি দেওয়া একটাই, আমরা এই এলাকার মানে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নিয়ে আমরা একটা কমিটি তৈরি করেছি, দামোদর বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি। এই কমিটির একটাই দাবি, দামোদরের উপর একটা পাকা সেতু চাই, যেখানে সরকারের থেকে প্রচুর টাকা স্যাংশন করে বহু ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর। সেখানে এই বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমানকে একটা সংযোগ বা মিলন সেতু যদি করা হয়, তাহলে এই এলাকার মানুষের ভীষণ উপকার হয়। সরকারের পর্যটন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে, পরিবহন শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক দিকটা আমূল বদলে যাবে, এটা আমরা মনে করি। তো আপনারা এর আগে তো অনেকবার আন্দোলন করেছেন? এর আগে আন্দোলন হয়েছে, বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন হয়েছে, তবে এবার আমরা যেটা শুরু করেছি, আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে, পূর্তমন্ত্রী থেকে শুরু করে, সেচ মন্ত্রী থেকে শুরু করে, পঞ্চায়েত মন্ত্রী থেকে শুরু করে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে, খনিজ মন্ত্রী থেকে শুরু করে, আমরা তাছাড়া ইস্কোর যে সুপার বস আছেন সিইও, তাকে দিয়েছি, আমরা এডিডিএকে দিয়েছি, ওদিকে বাঁকুড়া পৌরসভাকে দিয়েছি, বাঁকুড়া ডিএমকে দিয়েছি, যাতে সবাই মিলে একটা সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই ব্রিজটা সম্মিলিত প্রয়াসে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। তার জন্য আমরা আমাদের মতো সাধ্যমতো আমাদের এই কমিটির পক্ষ থেকে চেষ্টা করি। সমস্যাটা হচ্ছে যে এই পার থেকে ওই পার যেতে প্রচুরই সমস্যা হয়, কারণ এই বাসের কাট দিয়ে যাতায়াতটা করাটা খুবই কষ্টকর।
কারণ যখন তখন এটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিংবা জলে ডুবে যেতেও সম্ভাবনা থাকে। তো এখন তোমাদের কি দাবি রয়েছে? এখন পাকা সেতুর জন্যই দাবি রয়েছে। পাকা সেতু হয়ে গেলে বেশিরভাগ অনেকজনেরই সুবিधा হবে। आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल कई बार कह चुकी है कि राज्य सरकार खेला मेला तथा क्लबों को पैसा दे रही है, लेकिन एक ब्रिज तैयार करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 34 वर्ष वामफ्रंट सरकार, 11 वर्ष त्रिंका की सरकार राज की, लेकिन एक ब्रिज नहीं बना पाई। नदी पर ब्रिज बनाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद के लिए बात करनी होगी। बार बार कहने पर भी राज्य सरकार कोई पहल नहीं कर रही है। यहाँ 6 बजे के बाद नाव नहीं चलती, जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं। वहीं राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से पुल निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। गौरतलब है कि करीब 15 साल पहले केंद्र सरकार की ओर से यहाँ पुल बनाने की घोषणा की गई थी, शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन राजनीतिक दाव पेच में फंसने के कारण आज तक यहाँ पुल नहीं बना। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम की ओर से गरुई नदी का सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसके लिए नगर निगम के मेयर और चेयरमैन ने पहले ही सफाई कार्यों का जायजा लिया था और सोमवार को घोषित उप मेयर वसीम उल हक ने भी नदी की सफाई कार्य का निरीक्षण कल्ला घाट और गोपाल नगर से लेकर रेल पार के 24, 25, 26 और 28 के अंतर्गत आने वाले गरुई नदी के ऊपर बने पुल के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कल्ला और गोपाल नगर से होकर गुजरती गरुई नदी का सफाई अभियान जारी है। इसके बाद कसाई मोहल्ला के लोहा पुल, सिद्दीकी पुल और इकबाल पुल के क्षेत्रों का भी सफाई शुरू करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सफाई अभियान के तहत नदी से निकलने वाला कचरा नदी के किनारों पर ही छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से कचरा वापस नदी में चला गया और स्थिति जैसी की तैसी बनी रह गई। लेकिन इस बार नदी से निकलने वाले कचरे को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि नदी में कचरा दोबारा जा न सके। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आसनसोल की जनता से, विशेषकर रेल पार की जनता से आग्रह किया कि वह किसी भी तरह का कचरा नदी में ना फेंके, जिससे बारिश के समय नदी की जल निकासी की समस्या हो। नदी सफाई का जो इस बोर्ड में हम लोग फैसला लिए थे, तो गरुई नदी का पहला डिमार्केशन का काम जो है नापी हो चुका है। पिलर भी दिया जाएगा, जो घर पड़ रहा है उन लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा कि ये घर नदी के अंदर में है। साथ साथ दूसरा जो है वर्षा से पहले नदी का सफाई, कल्ला मोड़ की तरफ से हम लोग का जो है काम नदी का सफाई का शुरू हो गया कि निकासी का पानी का व्यवस्था हो। कल्ला मोड़ और आपका जाके गोपाल नगर, ये दो जगह हम लोग देखें जहाँ पे काम चल रहा है। और काम को तेज़ी करने के लिए हम लोग वार्ड नंबर 25, 26, 24 का इलाका, 28 का इलाका से जो कसाईमाला ब्रिज से सिद्दीक ब्रिज और पल्ली ब्रिज ये इलाका में जो गुजरता है, वहाँ पर कभी हम लोग दौरा किए हैं, इसलिए कि 2-1 दिन में मशीन अब वहाँ पे से उतरेगा। कसाईमाला का जो लोहा पुल है गरुई नदी का, वहाँ से उतर के तो नेशनल मैरिज हॉल की तरफ से और उधर से फिर पल्ली ब्रिज, इकबाल सेतु, ये इलाका को क्लियर करते हुए दाएँ बाएँ साइड में जाएगा। और जितना नदी से माल निकाला जाएगा, गहराई किया जाएगा, उस माल को, गार्बेज को मैंने 100% होने सके। इसलिए इम्प्रूवमेंट जिस तरह का है उसमें 100% माल शिफ्टिंग होने सके, लेकिन ये कोशिश रहेगा कि 100% माल को दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये फिर नदी में नहीं आए। इससे पहले जैसे हुआ था कि सफाई करके दोनों साइड में माल रख दिया गया था, इस पर माल को हम लोग शिफ्टिंग करने का टेंडर में है व्यवस्था कि वो माल को नदी से निकाल के बाहर दूसरे जगह फेंक देना ताकि वो फिर नदी में नहीं जाए। और दूसरी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के जरिए आसनसोल की आवाम से ये भी गुजारिश करूँगा
कि आप बहुत सारा कारोबार करते हैं, बैग का कारखाना है, कपड़े का कारखाना है, या आप शहर का जो स्क्रैप माल लेते हैं, स्क्रैप का है, जो भी है, कचरा को नदी में बने एक सिस्टम है कॉर्पोरेशन का सफाई का इंतजाम करता है। कॉर्पोरेशन जो है गार्बेज सफाई करती है, तो जो कॉर्पोरेशन का गार्बेज का सिस्टम है सफाई का, उस सिस्टम में आप गार्बेज दीजिए, लेकिन नदी में ना दीजिए। दूसरी तरफ लोग अपना अच्छा सुंदर तो घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाने के समय में जो राविश निकलता है वो राविश को ले जाके गार्बेज नदी में फेंक दे रहे हैं। तो आपका घर तो सुंदर हो जा रहा है, लेकिन आप जो कचरा निकला उसको नदी में फेंक के शहर का सुंदरता को आप खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नगर निगम आपको उसका सिस्टम बनाया है, आप हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ में तो रब्ता करें और अपना गार्बेज को दूसरी जगह आसनसोल के स्टेशन रोड के 13 नंबर मोड़ स्थित ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन कार्यालय परिसर में बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति की ओर से प्रत्येक दिन नर नारायण सेवा के तहत 250 जरूरतमंदों को दोपहर का भोजन कराया जाता है। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय सोमवार को स्टेशन रोड पर स्थित बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के नर नारायण सेवा में पहुँचे। सोमवार को उन्होंने बासुकीनाथ सेवा समिति में अपनी तरफ से जरूरतमंदों को भोजन करवाया। इस मौके पर बासुकीनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष सज्जन जालूका, पवन गुटगुटिया, नितेश जालूका सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति और उनकी पूरी टीम को लगातार पिछले 6 सालों से इस कार्य को करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगातार 6 वर्षों तक रोजाना इस मौसम में लोगों को भोजन करवाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति ये कार्य करती आ रही है। इसके लिए उन्होंने सज्जन जालूका सहित उनकी पूरी टीम की सराहना की और नगर निगम की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। এখানে বাসুকিনাথ সেবা সমিতির পক্ষ থেকে গত 5 বছর থেকে 2016 থেকে মানে অনাথ যারা হয়তো খেতে পায় না তাদের খাবার ব্যবস্থা করেছেন এখানে সমিতির সভাপতি সম্পাদক সহ সমস্ত যারা রয়েছেন এর সাথে যুক্ত, এবং তাছাড়া আসানসোলের সমস্ত ব্যবসায়ী যারা মানুষের সেবা করতে চাইছেন। মানে এটা বিরল ঘটনা, বিরল জিনিস যে কন্টিনিউ প্রসেসে ঝড় বৃষ্টি যাই হোক, রোদ হোক, যেটাই হোক, ঠান্ডা হোক, এই প্রোগ্রামটা কিন্তু চালু থাকে। তো আমি ওনাদের প্রণাম জানাচ্ছি, এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের যখন দরকার পড়বে আমরা নিশ্চিতভাবে ওনাদের পাশে দাঁড়াবো।